Shall we start? After the completion of sexual reproduction in flowering plant chapter, now we are going to start principles of inheritance. Principles of inheritance and variation. Principles of inheritance and variations. So this chapter, we can say this is the most important chapter for NEET exam. Okay, around 4 questions are compulsory. Minimum 4 questions are there. Minimum 4 questions from this chapter. And it is also a challenging topic, principles of inheritance and variation. It is not like other chapters. Other chapters, say for example human reproduction or sexual reproduction in flowering plant, if you read as it is from NCERT, you can solve the questions. But here you need some practice. Practice is needed here. Maximum number of questions should be solved from this chapter. Okay, चलिए. So प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक में सबसे पहले आएगा वर्ड जेनेटिक्स. व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. Heredity and variation. So what is heredity? Heredity means transmission of characters from parents to offsprings. First, what is genetics? Study of heredity and variation. And the term genetics coined by Bateson. Who coined the term genetics? Bateson coined the term genetics. Now comes what is meant by heredity. Heredity क्या है? Heredity means transmission of characters from parents to offsprings. Transmission of characters. Transmission of characters. Maybe body characters. Say for example, if father is bald, son is also going to be bald in future. If father is having hairs on the pinna ear, son also develop hairs on the pinna. Okay, so all these are hereditary characters. Transmission of characters. Then what is variation? Variations क्या है? Differences among the children of same parent. Your brother and you are not same. 2 sisters are not same. 2 brothers are not same. Why? Because of variations. Differences among siblings. Siblings, brothers, sisters में जो difference आ रहा है, those are variations. Again, in variation, there are 2 types of variation. Continuous variation, discontinuous variation. एक आएगा continuous variation. Continuous variation means the variations which are developing due to meiosis crossing over. Due to meiosis crossing over. In every generation, this meiosis is occurring. Every generation. Parents के generation में meiosis हुआ, कुछ changes हुए gametes में, फिर आपके जनरेशन में मियोसिस होगा, फिर कुछ चेंजेस होंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन में कुछ चेंजेस होंगे. हमेशा चलते रहेंगे ये वेरिएशंस, एंड दे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशंस. दे नेवर स्टॉप. मियोसिस ब्रिंग चेंजेस. आपको मालूम है मियोसिस की वजह से क्या होता है? चेंजेस आते हैं. मियोसिस की वजह से एवोल्यूशन होता है.
Meiosis bring changes. Next, discontinuous variation बोल के आएगा. Discontinuous variation these are the variations due to mutations. Due to mutations. Of course, mutation also bring changes. Mutation से भी changes आते हैं, but it is not compulsory. It's not compulsory. Whether discontinuous mutations are compulsory? No. It may bring changes, and mutation is not compulsory all the time. Mutation compulsory है? What is meant by mutation? Sudden heritable change in the DNA. Mutation बोलते हैं उनको. Sudden changes in DNA, maybe due to X-rays, UV rays. If our DNA exposed to X-rays or UV rays changes होते हैं वो DNA में, those are mutation. But it is not compulsory. Meiosis is 100% compulsory. Now, next. Father of genetics किसको बोलेंगे हम? Father of genetics किसको बोलेंगे? मेंडल को बोलेंगे. G.J. Mendel, father of genetics, because he formulated the laws. He formulated the basic laws of heredity. He has given laws of heredity, how characters are transmitted. The laws are given by G.J. Mendel, इसलिए इनको हम father of genetics बोल रहे हैं. Father of modern genetics फिर अलग है. Father of modern genetics अलग है, बेटसन बोलेंगे. फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अलग हैं. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं मॉर्गन, because he has conducted so many experiments on Drosophila. Morgan worked on Drosophila. And then father of human genetics, father of human genetics हैं गरुड़. गरुड़ गरुड़ discovered one metabolic disorder in human, alkaptonuria बोल के. गरुड़ discovered मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ह्यूमन में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्कवर करते हैं, अल्केप्टोन्यूरिया. ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर. सो ये अल्केप्टोन्यूरिया जो है एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर पेशेंट जो है ब्लैक यूरिन पास करता है. Whenever the urine of this alkaptonuria patient exposed to air, it turns to black color. तो इसलिए ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर बोले अल्केप्टोन्यूरिया को. फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी बोल रहे हैं उसको. Anyhow, in the present chapter we will focus mainly on father of genetics, Gregor John Mendel. What is the work of Mendel, how he worked, what are the experiments he conducted, everything. And the humans already they were exploiting sexual reproduction. Humans using sexual reproduction to bring changes in horse, to bring changes in cows, buffaloes, domestic animals, right? Through artificial selection. Artificial selection क्या होता है? Artificial selection means one of the best male and one of the best female dogs are selected and they are allowed to breed.
and their offsprings will be superior. Correct? This is what artificial selection. नेचर में क्या होता है? नेचर में नेचुरल सिलेक्शन होता है. The male and females randomly they select each other and they do breeding. That is natural selection. But human for their benefit, human हमेशा अपने benefit के बारे में सोचेगा, improvement of horse के बारे में सोचेगा, improvement of cattle के बारे में सोचेगा. And humans was using this sexual reproduction to bring changes. To bring changes, right? So sexual reproduction was used by humans to bring improvement in economically important animals. Economically important animals and plants. Always humans, they think about their benefit, and sexual reproduction is the best source because sexual reproduction means changes occur, variation develops. Correct hai? So one example is given in our book. One example, a breed of cow, Sahiwal. A breed of cow. क्या नाम? Sahiwal. A breed of cow, Sahiwal, developed in Punjab. By artificial selection and domestication. आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन करके इंप्रूवमेंट किया गया. साहीवाल में इंप्रूवमेंट लेकर आए. साहीवाल एक काऊ है, इंप्रूव्ड ब्रीड ऑफ काऊ है. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल गिवन. चैप्टर बिगिंस लाइक दिस. सो व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएशन, राइट? Let's focus on Mendel, what he has done, what was the work of Mendel, उस पे फोकस करेंगे अब. G.J. Mendel बोल रहे हैं हम, फादर ऑफ जेनेटिक्स. G.J. Mendel, Gregor John Mendel, born 1822, died 1884. Experimented on pea plant. What is pea plant? Pisum sativum. Experimented on Pisum sativum, pea plant. Experimented for 7 years. कितने साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहा वो पी प्लांट पर? 7 years. 1856 से 1863 तक. 63 तक. Mendel's work remained unrecognized till 1900. मतलब वो उसकी डेथ हो गई 1884 में. उसके डेथ के बाद भी कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करे उसके वर्क को till 1900. So nobody understood what Mendel was telling, what was his work. किसी को समझने नहीं आ रहा था. क्यों ऐसा? Because at that time
because at that time communication was not easy. कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी. आज के टाइम कैसा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, एक कॉर्नर वर्ल्ड से ना दूसरे कॉर्नर में इंफॉर्मेशन सेकंड में फैल जाती है इंफॉर्मेशन. लेकिन जो है मेंडल के टाइम में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट ही नहीं हुआ. जो वर्क ये बता रहा था कोई समझे ही नहीं, बिकॉज एट दैट टाइम कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी. एंड he used mathematics, he used mathematical ratios, to explain biological phenomena, आप थ्योरी में पढ़े होंगे ना, मेंडल का जब भी हम वर्क पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड? 3:1. What is dihybrid cross? 9:3:3:1. आप में से कितनों को समझने आता है ये 3:1 का मतलब क्या है? कितनों को आपको समझने आता है 9:3:3:1? समझने आ रहा आपको? नहीं आ रहा ना? ऐसे ही जो है वहां पे भी लोग कोई भी समझ रहे नहीं थे क्या है ये 3:1. बायोलॉजिकल फेनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल रेशियो यूज किया है, एंड इट वाज टोटली न्यू दैट टाइम. No biological work was explained by using mathematical ratios, but this person was the first time, Mendel, who used mathematical ratios to explain biological phenomena. It was totally new idea, so that's why his work remained unrecognized so long, 1900 तक. फिर 1900 में ऐसा क्या हुआ? In the year 1900, three scientists rediscovered Mendel's work. मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किए 3 साइंटिस्ट ने. नंबर 1 कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवरिस एंड थिशरमार्क. So these 3 scientists rediscovered Mendel's work. ओपन करें फिर एक बार फाइल्स क्या क्या हैं मेंडल के, और वर्क पढ़ के एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एंड इट वाज टोटली करेक्ट व्हाट मेंडल टोल्ड. सो सिंस फ्रॉम दैट टाइम 1900 से मेंडल को माना गया फादर ऑफ जेनेटिक्स. लेकिन तब तक वो नहीं था, डेथ हो गई थी उसकी 1884 में. So why he selected Pisum sativum for his work? What is the special character in that Pisum sativum? He can select so many plants. He can select other plants also. Why he selected only and only pea plant? There are some reasons. Let's see why he selected pea plant. There are some reasons. Number 1, whenever Mendel was observing pea plant, he was getting interest to know what is the reason for contrasting characters. Okay, whenever Mendel was visiting gardens to see pea plant, he found some contrasting characters, some opposite characters. Some pea plants are tall, some pea plants are dwarf. Some pea plants are having violet flower, some pea plants are having white flower. Some pea plants are having yellow seeds, some pea plants are having green seeds. So Mendel was very curious to know what is the reason for this contrasting character. Of course, they are pea plant only, belonging to same species, but contrasting characters are there, opposite characters are there. है ना? Human में भी देखिए, all humans are having eye color, but all eye colors are not same. Some are brown eye color, some are black eye color, green eye color, अलग अलग आते हैं. All are having height, but all heights are not same. So like that he found contrasting characters in
pea plant, because this plant was having many contrasting characters. What is contrasting? Opposite characters. Contrasting का मतलब क्या होगा? Opposite character, tall, dwarf, blue, white, violet, white, yellow, green. तो ऐसा contrasting, opposite characters. Second reason why he selected pea plant. It is an annual plant. It is an annual plant, short lifespan. Yes, it is the main reason why Mendel selected pea plant, because the plant was having very short lifespan. Annual plant, correct? Annual plant hai. It can be cross for several generations, right? Several. Mendel can see the results of first generation, second generation, third generation. Suppose he selected some other plant. Suppose Mendel, instead of pea plant, if he have selected banyan tree, जिसकी लाइफ स्पैन 200 ईयर है, 300 ईयर है, तो वहां पे क्या होगा? जनरेशन कैनॉट बी सीन. मेंडल सेवरल जनरेशन देख सकता था यहां पर, समझे? सो हेरिडिटी समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फादर के चिल्ड्रन, फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन, फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन स्टडी करना पड़ता है, सेवरल जनरेशन तक, राइट? 25 जनरेशन, 26 जनरेशन वी हैव टू स्टडी. तो वो सिर्फ पॉसिबल है कहां पर? पी प्लांट में पॉसिबल है. दैट वाज द रीजन. एंड थर्ड reason why he selected pea plant. It is a small climber. Climber है मतलब, climber मतलब एक weak stem plant which grow around the support. Suppose this is the supporting object, the plant is growing like this. इसको बोलते हैं climber. Weak stem plant growing around the supporting object, climber बोलते हैं उसको. It is a small climber, so it can be handled easily. And the fourth reason why he selected pea plant. Fourth reason, the flowers in pea plant are bisexual. Flowers are bisexual, so they can be self-pollinated or cross-pollinated. Flowers are bisexual. So they can be self-pollinated और cross-pollinated. चाहे आप self-pollination करा लो या तो cross-pollination करा लो. यस, बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, राइट? मेंडल हैज कंडक्टेड एमास्कुलेशन. मेंडल कंडक्टेड इमास्कुलेशन इन पी प्लांट. इमास्कुलेशन समझते हैं? रिमूवल ऑफ एंथर्स. सो मेंडल कंडक्टेड इमास्कुलेशन टू सी द रिजल्ट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, करेक्ट? मेंडल कंडक्टेड लिखिए यहां पर. मेंडल कंडक्टेड इमास्कुलेशन to see the results of cross pollination. To see the results of cross pollination. To see the results of cross pollination. मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा था पी प्लांट में, नो प्रॉब्लम, एंड इट वाज आल्सो गोइंग क्रॉस पॉलिनेशन. बाइसेक्सुअल फ्लावर में से अगर आप एंथर हटा देंगे,
then it will do which pollination? Cross pollination. So these are the reasons why Mendel has selected pea plant. Let's see, Mendel selected how many pea plant? How many pea plant he selected? Mendel selected 14 true breeding varieties of pea plant. 14. आप बोलेंगे 14 कैसा? 14 कैसा हो रहे हैं वो? Mendel selected 14 true breeding varieties. True breeding varieties of pea plant. आप बोलेंगे वो कैसे होंगे 14? तो मैं यहां पे लिस्ट बना के बताऊंगा. Mendel selected 7 pairs of contrasting characters. 7 pairs of contrasting character. Seven pairs of contrasting characters. Okay. And out of that 7 pair characters are controlled by genes. You know, characters are controlled by genes. These 7 pairs of contrasting characters actually controlled by 4 genes only, present on 4 chromosomes. Okay. These 7 contrasting characters controlling genes located on 4 chromosomes. ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब समझा रहा हूं मैं. देखिए 7 कैरेक्टर्स हैं, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, और वो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स होते हैं वो कितने क्रोमोसोम पे हैं? 4 क्रोमोसोम पे. फॉर एग्जाम्पल योर ब्लड ग्रुप, whatever your blood group A, B, O, your blood group is controlled by gene present on chromosome number 9. आपके क्रोमोसोम नंबर 9 पे एक जीन है जो आपके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है. ऐसे ही आपके हाइट के लिए एक जीन होगा, आई कलर के लिए एक जीन होगा, हर अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे. जीन्स कहां पर लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं. पता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं. तो यहां पे बताया जा रहा है दीज 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंट्रोलिंग जीन्स लोकेटेड ऑन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 4 क्रोमोसोम्स. 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर. पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम हैं? पी प्लांट इज हैविंग टोटली 14 क्रोमोसोम. Pea plant have 2n is equal to 14 chromosomes. 2n is equal to 14, मतलब डिप्लॉयड नंबर 14 है इनका. पी प्लांट का जो डिप्लॉयड नंबर है वो 14 है. आउट ऑफ 14 क्रोमोसोम जो मैं 7 कैरेक्टर्स बताने जा रहा हूं अभी, उसके जो जीन्स हैं कितने क्रोमोसोम पे रहेंगे? 4 क्रोमोसोम पे रहेंगे. उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बोला. आपका ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने के लिए जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 9 पे है. लेट्स मेक द लिस्ट ऑफ 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय मेंडल. और ये 14 कैसे होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाएगा. So we will make a table here. कैरेक्टर, इसमें डोमिनेंट कौन सा है कैरेक्टर, इसमें रेसेसिव कौन सा है, सपोज मेंडल सेलेक्टेड हाइट ऑफ द प्लांट.
मेंडल सेलेक्टेड हाइट ऑफ द प्लांट। तो हाइट में आपको दो हाइट मिलते हैं पी प्लांट में, एक तो टॉल मिलता है हाइट, और एक क्या मिलेगा आपको, डॉर्फ। एक हाइट टॉल मिलेगी, एक हाइट डॉर्फ मिलेगी। सेकंड, फ्लावर कलर मिलेगा। थर्ड, फ्लावर पोजीशन मिलेगा। फोर्थ कैरेक्टर, पॉड शेप मिलेगा। पॉड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। कैरेक्टर्स कितने हुए जरा बोलो? 7 कैरेक्टर्स हो गए ना, 7 कैरेक्टर्स हो गए ना। ये 7 कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के 2 फॉर्म मिलेंगे आपको। हर कैरेक्टर के कितने फॉर्म मिलेंगे? 2। हाइट में 2 मिलेंगे, टॉल डॉर्फ। ऐसे ही फ्लावर कलर में भी 2 मिलेंगे, फ्लावर पोजीशन में भी 2 मिलेंगे। तो कितने होंगे ये 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे ना। पेयर्स में आ गए ना, पेयर्स में। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, इफ वी टॉक अबाउट फ्लावर कलर, देयर आर 2 फ्लावर कलर, वायलेट, white. Flower colors are 2 type, violet, white. Flower position are 2 type, axial flower, terminal flower. समझ नहीं आ रहा? तो मैं आपको बता रहा हूं 1.7 कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने? 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर कितने? 7 कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने? 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। प्लांट कितने? 14। आप बोलेंगे 14 प्लांट कैसा हो गया? एक प्लांट टॉल, एक प्लांट डॉर्फ, एक प्लांट वायलेट फ्लावर, एक प्लांट व्हाइट फ्लावर, एक प्लांट एक्सियल फ्लावर, एक प्लांट टर्मिनल फ्लावर। पूरी लिस्ट कंप्लीट हुए तो कितने प्लांट होंगे? 14 होंगे। पॉड शेप फुल और इनफ्लैटेड, एंड रेसेसिव कैरेक्टर आर इसमें कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड पॉड, अच्छा पॉड शेप हो गया। पॉड कलर लिखेंगे, व्हाट इज अ पॉड कलर? ग्रीन डोमिनेंट आ रहा है, येलो रेसेसिव आ रहा है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट आ रहा है, रिंकल रेसेसिव आ रहा है। नेक्स्ट सीड कलर, सीड कलर में 2, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा शायद, ये डोमिनेंट रेसेसिव क्या है? वो आगे आएगा आपको, पहले ये समझने आएगा 7 कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, प्लांट्स आर 14। टोटल 1 प्लांट टॉल, 1 प्लांट डॉर्फ, ऐसे टोटल करेंगे तो 14 प्लांट हो जाएंगे। सो ये लिस्ट बन गई है। एंड डेफिनेटली ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। मेंडल नॉट सेलेक्टेड, मेंडल नॉट सेलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग dominant character in pea plant? Not selected, dominant, tall, violet, axial, constricted. अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज कर लेते इधर। क्वेश्चन समझे पहले आप। मेंडल नॉट सेलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंट कैरेक्टर। ऑप्शन क्या दे रहा है? टॉल एक, वायलेट एक, एक्सियल एक, कंस्ट्रिक्टेड एक। क्या लगाना आप? कंस्ट्रिक्टेड रेसेसिव कैरेक्टर है। आया समझने? वेदर मेंडल सेलेक्टेड लीफ शेप? नो। वेदर मेंडल सेलेक्टेड फ्लावर शेप? नो। लीफ साइज? नो। लीफ कलर? नो। हाउ मेनी color based characters? 3 color based character, flower color, pod color, seed color. Color based 3 character.
फ्लावर कलर, पॉड कलर, सीड कलर। ऐसे ये टेबल से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके टेबल को अच्छे से याद करना चाहिए, ठीक है। एंड इफ फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम, if flowers are born from the sides of stem, they are called axial flower. If flowers are born from the sides of stem, they are called axial. If flowers are born from the tip of stem, they are called terminal flower. Now you got the meaning. Axial means from the sides of stem, terminal means at the tip of stem. स्टेम के ऊपर रहेगा तो टर्मिनल, स्टेम के साइड्स में रहेगा तो एक्सियल। ओके, लाइक दिस। एंड यू मे बी आस्किंग दिस वन, फुल कंस्ट्रिक्टेड का भी मतलब समझ में आया आपको? फुल का मतलब क्या है? इफ फ्रूट इज लाइक दिस कंप्लीटली, इट इज कॉल्ड फुल फ्रूट। इफ फ्रूट इज लाइक दिस, then it is called constricted fruit. रिमेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, है ना? फुल और कंस्ट्रिक्टेड का मीनिंग भी समझ में आ गया। राउंड, इफ सीड इज राउंड, राउंड मीन्स परफेक्टली राउंड लाइक दिस। रिंकल मीन्स सीड इज नॉट हैविंग परफेक्ट शेप, ये रिंकल हो जाएगा। क्लियर है? टॉल डॉर्फ तो मालूम ही हो जाता। फ्लावर कलर वायलेट इज डोमिनेंट, व्हाइट इज रेसेसिव। एक्सियल टर्मिनल का मतलब बता दिया मैं आपको। फुल कंस्ट्रिक्टेड का मतलब बता दिया। कंस्ट्रिक्टेड मतलब बीडेड, बीडेड। अगर बीड्स बीड्स दिख रहे हैं फ्रूट के ऊपर, बीड्स राउंड, सो दैट इज कंस्ट्रिक्टेड और बीडेड फ्रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the working method of Mendel? मेंडल कैसे काम करता था पी प्लांट के ऊपर? वर्किंग मेथड क्या था इसका? एक फ्लो चार्ट बनेगा यहां पर, थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको हाउ मेंडल वाज वर्किंग। मेंडल फॉर कंडक्टिंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मेंडल को जब भी वर्क करना था पी प्लांट पे, सबसे पहले क्या करता था वो? सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन pea plant. First he selected true breeding pea plant. So you may be asking what is true breeding plant? थोड़ी देर रुक जाइए, सिलेक्शन करेंगे पहले हम ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है थोड़ी देर के बाद लिखेंगे हम। ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट पहले सेलेक्ट करेंगे उसको, फिर इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होंगे इनमें, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनके बच्चे आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? F1 जनरेशन बोलेंगे। आया समझने? मतलब मेंडल का काम करने का स्टाइल बता रहा हूं। मेंडल क्या करता था? मेंडल ऑलवेज सेलेक्टेड विच पी प्लांट फॉर स्टार्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट? ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। He always started experiment by using true breeding pea plant or pure line plant. Then gamete formation in that plant, फिर hybridization हुआ, फिर F1 generation आया। What is F1 generation? First filial generation, मतलब पहला generation। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उनके जो चिल्ड्रन होंगे F1 जनरेशन होंगे। समझ में आई बात? फिर वो F1 जनरेशन मैरी करेंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगा F2 जनरेशन। F1 जनरेशन के क्या बनेंगे? अब गैमेट फॉर्मेशन होंगे, फिर गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा? F2 जनरेशन आएगा। फिर मेंडल क्या करता था लास्ट में पता है? रिजल्ट को एनालिसिस करता था, रिजल्ट एनालिसिस।
by using mathematical ratios. मैथमेटिकल रेशियोज यूज करके वो रिजल्ट एनालाइज करता था. मतलब एक मान लीजिए एक बात जो है, मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट लेके, एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट लेके यूज कर, फिर पहले गैमेट बनेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर F1 जनरेशन आएगा, फिर F1 जनरेशन के गैमेट बनेंगे, फिर F1 जनरेशन के बच्चे आएंगे, F2 जनरेशन, फिर F2 जनरेशन में रिजल्ट एनालाइज करेगा कितने टॉल हैं कितने डॉर्फ हैं, बाय यूजिंग मैथमेटिकल रेशियो यूज करके कितने टॉल हैं कितने डॉर्फ हैं. अनदर एग्जांपल, एक वायलेट फ्लावर ले लेगा, एक व्हाइट फ्लावर ले लेगा, दोनों पी प्लांट को क्रॉस करेगा. क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन को क्रॉस करने के बाद F2 जनरेशन आया, फिर F2 जनरेशन में रिजल्ट एनालिसिस करना कितने वायलेट हैं कितने व्हाइट हैं. अनदर एग्जांपल, पॉड शेप. पॉड शेप में दो आते हैं ना, एक इनफ्लैटेड एक कंस्ट्रिक्टेड, दोनों को क्रॉस करेंगे, F1 में क्या आएगा, फिर F2 में क्या आएगा, फिर रिजल्ट. Like this he conducted experiment again and again by choosing different characters. कभी हाइट लेके क्रॉस कर रहा है, कभी फ्लावर शेप लेके क्रॉस कर रहा है, बट ऑल ऑफ वी आर वेरी अवेयर ऑफ हाइट. हम सब लोग सिर्फ हाइट के बारे में पढ़ते हैं ना, थ्योरी में सिर्फ हाइट के बारे में पढ़ते हैं. नीड में क्या करेगा, हाइट को हटा देगा, फ्लावर कलर देगा. If violet flower pea plant is crossed with white flower pea plant in F1 generation, which character appear? Violet, because violet is dominant character. If violet flowers which is obtained in F1 generation, if they are self hybridized, then F2 generation में result आएगा, कितने violet आएंगे कितने white आएंगे. F1 generation का क्या करना है, यहां पर सेल्फिंग करना है. क्या करना है, सेल्फिंग. मतलब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, सेल्फिंग बोलते हैं उसको. ठीक है. सो यू मे बी आस्किंग मी व्हाट इज मीन बाय ट्रू ब्रीडिंग और प्योर प्लांट. व्हाट इज मीन बाय ट्रू ब्रीडिंग और प्योर प्लांट? व्हाट इज मीन बाय दिस? Homozygous plants are called true breeding plants, and they are obtained by self pollination. Homozygous plant obtained by self pollination, are called true breeding plants. ट्रू ब्रीडिंग प्लांट. होमोजाइगस प्लांट, अब फिर नया वर्ड आ गया, होमोजाइगस क्या है फिर ये? होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस, तो होमोजाइगस का मतलब समझ जाएंगे तो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब समझ जाएंगे. होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? व्हेन ए सिंगल कैरेक्टर is controlled by a pair of identical alleles. When a character is controlled by a pair of identical का मतलब same. When a character is controlled by a pair of identical alleles. Identical मतलब same, alleles, identical alleles. आप फिर बोलेंगे सर अलील क्या है ना? ट्रू ब्रीडिंग क्या है, समझ में आया? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है, सपोज इफ यू डू सेल्फ पॉलिनेशन इन ए प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन कराते गए तो आपको मिलेगा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट. तो ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है? होमोजाइगस प्लांट होता है. होमोजाइगस प्लांट होता है ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन.
And what is homozygous? When a character is controlled by a pair of identical allele is called homozygous. इसको क्या बोलते हैं? homozygous बोलेंगे. एग्जाम्पल लेंगे तो शायद समझने आ जाएगा आपको. एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल लिखेंगे, होमोजाइगस का मतलब लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाइट कंट्रोल्ड बाई कैपिटल टी. दो बार कैपिटल टी लिखा मैं, आइडेंटिकल एलील हो गए, दोनों सेम हो गए. इट इज कॉल्ड होमोजाइगस. इट इज कॉल्ड होमोजाइगस. स्मॉल टी दोनों सेम आ गए, ये भी होमोजाइगस. अगर मैं एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिखूं तो होमोजाइगस बोल सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता. मैं इसको होमोजाइगस नहीं बोल सकता हूं. What is mean by homozygous? When a character is controlled by a pair of identical रहना, दोनों सेम रहना. कैपिटल टी होमोजाइगस. समझ गए? एक स्मॉल टी आया तो दोनों भी स्मॉल टी आना, होमोजाइगस. एक कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो क्या बोलेंगे फिर? अब हेटेरोजाइगस बोलना पड़ता है इसको. हेटेरोजाइगस बोलना चाहिए. So you got the meaning true breeding pea plant. True breeding का मतलब है homozygous plant. Homozygous का मतलब है when a character is controlled by a pair of identical allele. So your pocket is having suppose 2 pens. Your shirt pocket is having 2 pens. अगर दोनों पेन सेम हैं, एक जैसे 100% सेम है तो बोलेंगे homozygous. अलग अलग हैं तो heterozygous. आप बोलेंगे सर मैं 2 पेन नहीं रखता, एक ही पेन रखता हूं मैं, तब क्या बोलना? हेमीजाइगस. हेमीजाइगस. समझ गए? When a character is controlled by a single allele of a gene, एक ही अलील रहा तो क्या बोलेंगे? हेमीजाइगस. तो डेफिनेटली आपके माइंड में अलील के बारे में जरूर डाउट आ रहा होगा. अलील मैं समझा देता हूं आपको. देखिए अलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द जीन. अलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द जीन. एक जीन के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड alleles. Alternate forms of the gene are called allele. Different forms of the gene. Different molecular forms of the gene. Different molecular forms of the gene. देखिए सारे पेन ही हैं, आप सब पेन से लिख रहे हैं, सारे पेन ही हैं, लेकिन सारे पेन अलग अलग हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के हैं, अलग अलग टाइप के पेन्स हैं. तो अल्टरनेट ऐसे ही जीन के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अलील्स बोलेंगे. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन आर कॉल्ड अलील. ठीक है? या डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ द जीन आर कॉल्ड अलील. फॉर एग्जाम्पल, हाइट इज कंट्रोल्ड बाय टी जीन. हाइट इज कंट्रोल्ड बाय टी जीन, और टी जीन के 2 फॉर्म, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी एक. फॉर एग्जाम्पल टी के 2 फॉर्म, एक तो कैपिटल टी एक तो स्मॉल टी. आई के कितने फॉर्म बोलो जरा? आई जीन के 3 फॉर्म होते हैं. एक तो आई ए होता है, एक तो आई बी होता है, एक स्मॉल लेटर आई होता है. मतलब टी जीन के सिर्फ 2 ही फॉर्म होते हैं. टी जीन के सिर्फ 2 फॉर्म होते हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी. उनको अलील बोलूंगा मैं. ठीक है? आप बोले पेन के कितने फॉर्म्स हैं? बोले तो आप बोले सिर्फ पेन के 2 फॉर्म है सर, एक ब्लू और एक रेड. आपको मालूम इसलिए था, ग्रीन पेन भी रहता, ब्लैक पेन भी रहता, डिफरेंट पेन्स रहते. सपोज तो मेंडल बोलता था हर जीन के सिर्फ 2 फॉर्म ही रहते.
लेकिन मेंडल के बाद पता चला जीन के कई फॉर्म्स भी हो सकते हैं, 3 फॉर्म्स भी हो सकते हैं, 4 फॉर्म्स भी हो सकते हैं, 5 फॉर्म्स भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ जीन। आई जीन के कितने फॉर्म हैं? 3 फॉर्म्स हैं, आई ए, आई बी, स्मॉल लेटर आई। ओके, क्लियर है ना? ये सारी चीजें हम याद रखेंगे इंट्रोडक्शन में आज की क्लास में। और एक बात क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो चैप्टर है, ये चैप्टर ऐसा है एक भी क्लास मिस नहीं होना है इसमें, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कॉन्सेप्ट्स पूरा ये चैप्टर के। ओके, तो टुमारो विल कंटिन्यू। और आज आफ्टरनून में डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन भी है, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ओके।